ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁਸਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਬਣਦਾ, ਬੱਚੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉੱਧਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ 11 ਮਈ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ, ਰੁਦਰਪੁਰ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ, ਉੱਧਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ तक की फीडबैक सी रुद्रपुर दी? थैंक यू सर। देखिए रुद्रपुर जैसे आपने बताया बहुत से स्टूडेंट्स का, और इवन के आपके चैनल के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट कॉल करते हैं आपके फेसबुक पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे, कि वहाँ रियली में ठीक नहीं है सिचुएशंस कि लोग मिसगाइड कर रहे हैं। देखो जिस बच्चे की प्रोफाइल ठीक नहीं है वो मिसगाइड हो रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छा प्रोफाइल किसी गलत कंसल्टेंट के चुंगल में आके अपना करियर स्पॉइल कर लेता है तो वो बच्चे के लिए गलत हो रहा है। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे, और स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम बल्कि हमारे ऑफिस भी आते हैं, वो बोलते हैं यार वहाँ कोई जेन्युइन कंसल्टेंट नहीं है, आप क्यों नहीं आ रहे, आप बात क्यों नहीं कर रहे, वहाँ स्टूडेंट को अवेयर क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी आर कमिंग फर्स्ट टाइम इन रुद्रपुर। होटल रुद्रा कॉन्टिनेंटल है जी, जो रुद्रा चौक पे। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਰੁਦਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ वाले बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ प्रोफाइल ਉਹਨਾਂ ਦੀ मिनिमम होनी चाहिए ਜਿਹੜਾ कि वीज़ा ले सकते हैं? देखिए आज की डेट में जो ऑस्ट्रेलिया का मूड बड़ा स्पष्ट है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीज़ा देना है, नॉन जेन्युइन को नहीं देना है। GT मैच होना बहुत ज़रूरी है और यूनिवर्सिटीज़ बड़ा टाइम ले रही है। तो अभी आपके पास टाइम है जब तक आपका रिज़ल्ट आता है, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा मई के एंड तक, तो आपके पास टाइम है। आप प्लीज़ इन मेन टाइम PT IELTS अपना क्लियर कर लीजिए। ट्राई टू गेट 6 बैंड नो लेस देन 5.5, और कुछ यूनिवर्सिटी तो 6.5 बैंड नो लेस देन 6 पे बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन देती हैं। और इसके अलावा जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं उनको कोशिश करो कि 6.5 बैंड नो लेस देन 6 हो, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आपका जब तक आपका रिजल्ट आए ना, आपके हाथ में IELTS स्कोर होना चाहिए जब तक आपका 12th का रिजल्ट आता है। अब देखना ये होगा कि जो स्टेट बोर्ड को मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी 65% मेजर 4 सब्जेक्ट्स वो बोलती हैं। इसके अलावा जो बच्चा CBSE ICSE बोर्ड से है, मेजर 4 सब्जेक्ट 60%। लेकिन हाँ, अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी मार्क है देन डेफिनेटली प्लीज़ कम टू द सेमिनार्स, और वी विल गाइड कि भाई पर्टिकुलर कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको लेस स्कोर पे भी एडमिशन दे पाएंगी। बट कीप इन माइंड अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टेट बोर्ड 65%, CBSE 60%। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे आएंगे, परसेंटेज तो 80% होगी, लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स में 38, नॉन मेडिकल वाला बच्चा है तो आपका क्या नाम है फिजिक्स में कम नंबर या मैथ में कम नंबर, मेडिकल वाला है तो चाहे फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में कम है, या बायो में कम है, इधर से इंग्लिश में कम है। ठीक है। इसके अलावा आर्ट्स वाले बच्चों के भी जो सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो उनके पास बहुत बड़ी मार्कशीट है ना, ढूंढनी पड़ती है कि 80% मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ता है इसमें मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, बड़े स्पेक्स लगा के, क्योंकि बच्चे लेके ही ऐसे सब्जेक्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, अच्छा अपना क्या नाम है, इसके अलावा म्यूजिक का ले लिया, होम साइंस ले लिया, तो ये एक मेजर सब्जेक्ट्स में बहुत कम काउंट होते हैं। या फिर आपका क्यों उसका क्या नाम है, म्यूजिक वाला, म्यूजिक होता है एक तो एक फिजिकल एजुकेशन में 90% मार्क लेके बच्चे अपने 70% बना लेते हैं। तो मैं
डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हाई कमीशन, चाहे वो कनाडा है चाहे ऑस्ट्रेलिया, आज की डेट में आपको जो वीज़ा दे रही है वो बहुत नीट एंड क्लीन स्टूडेंट्स को वीज़ा दे रही है। तो आपने देखना है कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज कितनी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में बिलो 50 जाती है, फाइल लगाओ, वो एक अलग बात है। आप अपना प्रोसेस फॉलो करो कि वीज़ा लगवाने के लिए अपनी फाइल स्टार्ट करो, बट कीप इन माइंड साथ साथ में अपना इम्प्रूवमेंट का पेपर जरूर दे दो, क्योंकि मैं मोर देन 1000 स्टूडेंट से मिल चुका हूँ पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, सेमिनार्स में प्लस में अदर्स क्या नाम ऑफिस में, जो बच्चे ऐसे, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे बहुत ऐसा बच्चा घूम रहा है मार्केट में, फ्रेश बच्चा, जो जेन्युइन बच्चा था तो सब निकल चुका है, जिसके रिजेक्शंस है। रिजेक्शंस के रीज़न है कि किसी के मेजर सब्जेक्ट्स में कम है, आइल्स में स्कोर कम था। तो ऐसे आप ना बने आने वाले टाइम, मतलब कल अगले साल के एंड तक आप ना बचे। तभी मैं कहना चाह रहा हूँ मेजर सब्जेक्ट्स ऑलवेज मैटर ए लॉट। तो आप अपना मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज कम है तो इम्प्रूवमेंट का पेपर भी भरो, इधर से वीज़ा के लिए फाइल भी प्रोसेस करो, ठीक है। कहीं कंपार्टमेंट आ गया, एक लड़की आती है मेरे पास, अब बड़ी मतलब एजुकेटेड लड़की, अपनी मदर और ब्रदर के साथ आती है, और शी हैड ए प्राउड ऑन हर ब्रदर। वो अपने भाई पे उसको बड़ा प्राउड था, क्योंकि बड़ा इंटेलिजेंट है बच्चा मेरा भाई, ठीक है। इसको ना मैंने कॉमर्स दिलाई है, एडिशनल मैथ दिलाया है, मेरा दिमाग खटक गया वहीं पे, एडिशनल मैथ। मैं कहा एडिशनल ही लेके चले हो, मैं कहा ट्यूशन लगवाया था इसका, बोले नहीं। मैं पास हो जाएगा, बोले पास तो हो जाऊंगा। मैं नंबर कितने लेगा, मैंने कहा, बोलता है कि जी आ जाएंगे 38 40। मैं कहा तेरा वीज़ा नहीं लगता भाई। उसकी सिस्टर बोलती है भैया ये तो एडिशनल सब्जेक्ट था। मैं कहा मैम आपने एडमिशन इंडिया में लेना है तो एडिशनल सब्जेक्ट था, एक अलग बात है। आपने एक अच्छा सब्जेक्ट इसको दिला दिया और उसके लिए ट्यूशन लगवाई नहीं। ये खुद कह रहा है कि 38 40 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे। एम्बेसी इसको नहीं देखती एडिशनल। आपके पास इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस है, ये 4 ही सब्जेक्ट ले लेती है, इसके अलावा इंग्लिश ले लेती है। आपने मैथ क्यों लिया? मैथ लिया तो उसमें नंबर होने चाहिए। तो ऐसे बहुत से बच्चे घूम रहे हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट लेकर। कीप इन माइंड, अगर एडिशनल सब्जेक्ट कोई मेजर सब्जेक्ट है, परसेंटेज कम है, इम्प्रूवमेंट इफ यू वांट टू गेट 100% श्योर शॉर्ट वीज़ा, ठीक है जी। कुछ बच्चे कंपार्टमेंट वाले आएंगे, कंपार्टमेंट के पेपर दे देना, ठीक है। ये एक सिंपल सी सजेशंस है ताकि टाइम रहते आप अपने जिस भी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। इंप्रूवमेंट आपने करना है। अगर आपके बिलो 50% मार्क्स है, साथ में अपनी फाइल लगा लो वीज़ा के लिए। वीज़ा आ जाए वेल एंड गुड है, नहीं आता इंप्रूवमेंट के बाद हो सकता है। कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के पेपर दो, इसके बाद फिर जाओ, दैट इज़ ओके। अगर इस तरह से फॉलो करते हो, जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाओगे, डेफिनेटली आप विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। अच्छा, कई खासकर उधरपुर इलाके की गल करिए, उत्थे तवज्जो देंदे एजेंट भी गलत डिग्री बना दी है किसी दी यूनिवर्सिटी का कीता नहीं, बच्चे ने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के वीज़ा लवा देंगे है, बच्चा चला जाता है। उस तो बाद बच्चा की ਉਹਦੇ नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स। पहली बात तो आज की डेट में एम्बेसी में ऐसे स्कैनर लगे हुए हैं, ठीक है, पकड़ा जाता है। अभी मैंने पिछले शो में बात करी थी, मैं फिर भी बताना चाहूँगा, मेरे को सेमिनार्स में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो आइल्स में फैब्रिकेट करके बैठे हैं, एजेंट्स ने करे हैं, लेकिन बच्चा भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, और 10th की ग्रेजुएशन बना दी। जो एजेंट्स हैं ना, एजेंट्स देखते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी है। अब उम्र के हिसाब से बात करते हैं, 21 साल का हो गया, ये +2 पास नहीं है, या 10th पास है, इसकी BCom बना दे, इसकी BBA बना दे, इसकी BTech बना दो। सर अगर आप किसी न किसी तरीके से निकल भी गए, आप सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। पिछली बार मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटीज़, नाम तो मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, कम से कम 45 स्टूडेंट रिपोर्ट किए हैं। वो बच्चा जो सिर्फ 10वीं 12वीं पास है, या जिसकी परसेंटेज बिलो है, और उसके 80% फैब्रिकेट करके आप उसका वीज़ा लगवा देते हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा जा रहा है, वहाँ परफॉर्म कर नहीं रहा है, क्या पकड़ा नहीं जाएगा? कल ने PR डालोगे, PR के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, कहाँ से लेके आओगे? वेरिफिकेशन होती है हर चीज़ की। तो कीप इन माइंड, आपने अगर पहली बात तो निकल नहीं पाओगे, अगर निकल भी गए, पहुँच भी गए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पक्का होगा, सेटल होगा, और इवन के वो बच्चा टाइम से पहले डिपोर्ट भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर और दूंगा। मैं ना अभी जब देहरादून सेमिनार से आ रहा था वापस, तो मैं एक स्टूडेंट से चैट कर रहा था। स्टूडेंट ने मेरा स्टेटस कॉपी करके अपने स्टेटस पर लगा लिया। मैंने लिखा वेल डन बेटा, कीप इट अप, तो एंड स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। तो मेरे को मैसेज करता है, सर अब तो मैं ना इंडिया आके ही स्टे ब्लेस्ड होऊंगा। मैंने कहा क्यों, वाई आर नॉट इन जर्मनी? मैं जर्मनी में क्यों नहीं है? क्योंकि 2 साल 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले मैंने उसको जर्मनी भेजा था। बोलता है कि भैया किस्मत, ज़िंदगी खेल गई मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बता मेरे को। तो बोलता है कि मैं वहाँ जाके मैंने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली,
यूनिवर्सिटी चेंज करके मैंने पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया, और उधर से जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी वहाँ से उसने एनओसी ली नहीं, तो इमिग्रेशन ने उसको वीज़ा कैंसिल कर दिया। वीज़ा कैंसिल कर दिया तो अब करेगा क्या, उसको कंट्री छोड़ना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैंने कंट्री छोड़ना है, तो मेरे कज़न ने बोला है कि तू एक काम कर, वाया मैक्सिको यूएसए जा जा। तो बोला मैं मैक्सिको चला गया, मैक्सिको से क्या नाम है, मेरे को जब जैसे जैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की मैं फड़ा गया, और वहाँ पे बॉन्ड भरा जाता है तकरीबन 15-20 लाख 25 लाख रुपए तक का। बोला 4 महीने तो जेल में रहा, पैसे वापस नहीं मिले बॉन्ड के, और मैं इंडिया बैठा हूँ। बोला भैया ज़िंदगी मेरे साथ खेल गई। मैंने कहा ज़िंदगी ने नहीं खेला, तूने खुद करा ऐसा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट है, फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट के साथ ना जाएं। और अगर जो आप चले गए वहाँ पे अच्छे डॉक्यूमेंट के साथ भी गए हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ भी गए, ज़िंदगी नहीं खेलती, आप खेलते हो अपनी ज़िंदगी के साथ। अच्छा। आपको अपनी एजुकेशन करनी पड़ेगी। आप इंडिया से पढ़ने गए हैं, पढ़ोगे तो वाइट कॉलर जॉब मिलेगी, सेटलमेंट होगी, और नहीं तो आप वापस आएंगे और ਜ਼ਿੰਦਗੀ में कहीं पे नहीं जा पाओगे। ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। वही रीज़न है ना, इजी वे मतलब वो एक शॉर्टकट मारते हैं। सर आप बोल रहे हो इम्प्रूवमेंट भरो, उसने बोला लोड नहीं मैं करा दूंगा जी सर, वो इजी वे हो गया ना। डेफिनेटली, मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा वो अपने बच्चों के साथ ऐसे करते क्या? ऐसे नहीं, कभी नहीं करते, नहीं करेंगे ना। अपने बच्चों को तो एजुकेशन देंगे कि भाई बढ़िया एजुकेशन लेनी है, एजुकेट करना है उनको, और उनका 80% मार्क लेना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। फिर दूसरे स्टूडेंट के साथ क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। 11 ਮਈ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿਲੀਭੀਤ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਰਮਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਦੇਣ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ 18 ਮਈ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਰੋਲ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਨਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर ये ਜਿਹੜੇ इसके अलावा सर एक बार बोली दो, 1 जून को हम जर्मनी का एजुकेशन एक्सपो लेके आ रहे हैं चंडीगढ़ में, होटल अरोमा में। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੀ ਆਪ ਕਦੀ ਤਰੱਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ? देखिए डिपेंड करता है कि अब किसके माइंड में क्या चल रहा है, बट मेरी तो ये पॉलिसी है कि जी मैं हर एक स्टूडेंट तक पहुंचूं, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे और इवन के जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे बड़ी कॉल आती हैं कि भाई आप यहाँ आओ, जेन्युइन गाइडेंस दो, क्योंकि वहाँ कंसल्टेंट बैठे नहीं, अच्छे जेन्युइन कंसल्टेंट है नहीं, और जेन्युइन नहीं है तो कुछ लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो एक कंसल्टेंट जिसके पास जेन्युइनिटी नहीं है और उसके पास अगर एक बच्चा जो जेन्युइन स्टूडेंट फाइल लगवाता है तो उसकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो वो कल ने फिर फंस जाता है। तो ये डिपेंड करता है एजेंट्स की मेंटलिटी क्या है, क्यों नहीं वहाँ पे जाके सेमिनार करते। हम सेमिनार किए हैं, हमने सेमिनार किए हैं, बच्चों ने बड़ा प्यार दिया है, 200, 250, 300 बच्चा हर एक सेमिनार में आया है, ऑन स्पॉट एडमिशन दिए। सर दिल्ली की मैं बताऊँगा, दिल्ली मेरे पास से एक आंटी आती है और मेरे को कम से कम 25 बार बोल के गई, ऑफिस खोलो, ऑफिस खोलो, ऑफिस खोलो। वही यही देहरादून में हुआ कि भैया ऑफिस खोल लो, यहाँ पे हमें भी ज़रूरत है कि एक जेन्युइन गाइडेंस हो। इसी तरीके से मुझे पता है रुद्रपुर गंगानगर में भी यही चीज़ होने वाली है कि भाई दे वांट द जेन्युइन कंसल्टेंट, दे वांट द जेन्युइनिटी, क्योंकि हर एक नहीं करना चाहता बच्चा चोरी, बच्चा सर पेरेंट्स भी नहीं चाहते। नहीं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, डिपोर्ट हो जाता। सर बेइज्जती अलग है, फ्यूचर खराब हो गया बच्चे का, वो अलग है। वो बच्चा इंडिया आके सेटल नहीं हो सकता,
और वो पूरी जिंदगी उसकी लाइफ में मलाल है। कितने ऐसे बच्चे दिखा दूं ये मैं। वही हाल होगा जो आप अभी यूएसए वाले एग्जांपल दे रहे हो, भी जिंदगी खेल गई, जी, जिंदगी खेल गई, पर वो जिंदगी नहीं खेली, बच्चा खुद खेल गया अपनी लाइफ के साथ। ਇਹ ਜੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨੇ। ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਆਇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ यूनिवर्सिटी दूजी एली कोर्स नाल होवे। बड़िया चीज़ां ने जेडे घट सर एम्बेसी वीज़ा देने के लिए बैठी है और बच्चे को हार्ड वर्क थोड़ा सा करना चाहिए। बच्चे का स्कोर कम आया, इंप्रूवमेंट कर लो यार। आपका आइल्स में स्कोर कम आया, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज, रियलिटी टेस्ट करा रहे हैं, आइल्स रियलिटी टेस्ट, आओ आप मेरे पास एक बार, आप लाइव क्लासेस भी हम दे रहे हैं, इसके अलावा ऑफिस में आओ, आपको डेमो क्लास लेके जाओ, आपका स्कोर आएगा। पैसा कौन मांग रहा है आपसे? पहले एक बार आके तो देखो, क्लास तो लगाओ। इसके अलावा बहुत हर प्रोफाइल में अमन सर कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है, बशर्ते ही पॉजिटिव देखने की नज़र होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव चीज़ें देखोगे तो वीज़ा निकलेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ % ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? देखो सर, स्टूडेंट की प्रोफाइल और स्टूडेंट के साथ बैठना पड़ता है, आधा घंटा मत्था लगाना पड़ता है चाय पे, उसकी सारी चीज़ें उगलवानी पड़ती हैं, रीजंस क्या हैं। उसके एकेडमिक तो देख लिए, एकेडमिक देख के देखना ये है कि ये पुअर कहाँ है और किस सब्जेक्ट में ये मतलब एक तरह से ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो उस पहली बात तो उस सब्जेक्ट को हम आधार बनाएंगे। डिप्लोमा में रिफ्यूज़ हुआ है, एडवांस डिप्लोमा दे देंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल है, 2 बच्चों की प्रोफाइल है, गगन अपना मानस रहेजा, अकुल गंगा, दोनों कजन्स थे। मेरे ऑफिस आते हैं इनके फादर, और दोनों के दोनों पेरेंट्स लिटरली क्राई कर रहे थे कि यार इतनी अच्छी प्रोफाइल, हमारा वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया कनाडा का, तो मेरे तो बच्चे का स्पॉइल करियर ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया, मेरे तो 80,000 ख़राब हो गए, मेरे 2 लाख रुपए ख़राब हो गए। तो मैंने कहा सर आप एक काम करिए, कूल हो जाइए, चाय पीजिए, मैं आपका वीज़ा लगाऊंगा, डोंट वरी। सर फाइनली बहुत स्टूडेंट गोट द वीज़ा। थोड़ा सा देखा था, थोड़ी सी चीज़ देखिए, उस कंसल्टेंट ने उसको सिंपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिया, मैंने उसको 3 ईयर का एडवांस डिप्लोमा दिया। उस कंसल्टेंट ने उसको जो कॉलेज दिया, वो कोर्स उससे कोप नहीं हो पा रहे थे, मैंने ऐसा कोर्स दिया जिसमें उसकी कोप अप हो रही थी, मतलब रिलीवेंसी बहुत अच्छी बन रही थी। एसओपी में बच्चे को खुद क्लियर नहीं था पहली बार जब फाइल लगाई कि एग्जैक्टली क्या एम्बेसी को कहना चाहता है। हमने उसकी एसओपी पे वर्क किया, फाइनली बहुत स्टूडेंट गोट द वीज़ा और दोनों बच्चे फ्लाई कर रहे हैं। तो सर थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी होती हैं बच्चे का वीज़ा लेने के लिए। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, डिप्लोमा में वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, एडवांस डिप्लोमा दे दो, बैचलर दे दो, कॉलेज में हुआ है यूनिवर्सिटी दे दो। देखना ये होगा कि जो उसकी रिलेवेंसी है वो बनती है नहीं बनती। एक बच्चा मेरे पास दिल्ली से आता है, ठीक है, अब वो 5 साल से बैंक में नौकरी कर रहा है, अकाउंटेंट प्राइवेट बैंक में, एंड फाइनली उसका रिफ्यूज़ल है 3 बार। मैंने उसका लगाया, उसका मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भेज दिया, उसको अकाउंटिंग की मैंने भेज, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग में भेज दिया, उसका 3 दिन में वीज़ा आ गया और वो बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें देखनी होती है। फिर आपका एरिया कैसा है, आप कॉलेज की बजाय यूनिवर्सिटी दे दो, आप भीड़ की बजाय बाहर का एरिया दे दो, ठीक है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स पे वर्क करो, उसकी फैमिली पे वर्क करो, बच्चे का वो कोर्स करने के बाद किस टाइप की उसको जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, उसको कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी फैमिली को कहाँ कहाँ किस किस बिजनेस में किस किस जॉब में कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर एफर्ट्स किए जाएंगे बच्चे का वीज़ा लगता है। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਇਲਸ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। IDP ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਿਆ। कुछ वीज़ाज हो जिन्होंने चैलेंजिंग प्रोफाइल कह लीए, मिल के जानते हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ बारे उन्होंने की ख्याल है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता, आई एम फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज़। आज हमारे साथ वैसाखी हैं जिनका कनाडा का वीज़ा आया है एंड शी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जैसे कि इतनी दूर से हैं तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज कैसा लग रहा है मैम आपको वीज़ा? मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड मिस्टर प्रदीप बलियान सर, जो आज उनकी वजह से मेरा वीज़ा आया है।
मैं बेसिकली कैलकाटा से हूँ, बहुत दूर से हूँ, और मेरा एक बार ऑलरेडी कनाडा का रिफ्यूज़ हो चुका है। मैंने पहले कैलकाटा से फाइल लगाई थी। रिफ्यूज़ होने के बाद मैंने बहुत रिसर्च किया यूट्यूब में एंड काफ़ी ऑनलाइन प्रोफाइल्स में, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग में। आफ्टर दैट मैंने वेस्टर्न ओवरसीज़ के बहुत सारे वीडियोस देखे प्रदीप आलियन सर के। उसके बाद मैंने कंसिडर किया, बाकी सब बहुत कंसल्टेंसीज को कंसिडर करने के बाद इनके सक्सेस रेट बहुत हाई है बाकी लोगों से, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं इनसे ही करूँगी, चाहे मैं कितने भी दूर से हूँ। आफ्टर दैट मैंने इनसे कांटेक्ट किया एंड विद इन 3 months मेरे सारे चीज़ प्रोसेस हो गए, और हार्डली मैं 2 और 3 टाइम्स में इनके यहाँ पे विजिट किया, बाकी सारे मेरे ऑनलाइन प्रोसेस हो गए थे। इनके स्टाफ्स दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। जब भी मैं कॉल करती थी मैं बहुत परेशान करती थी, पर हर बार उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया है, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ वेस्टर्न ओवरसीज़, अंकिता मैम एंड ऑल ऑफ देम। मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है, मैंने BA LLB किया है 2012 में। उसके बाद मेरा 7 years के गैप है। मैंने 7 years में वर्क किया है दिल्ली एंड अदर सिटीज़ में। तो मेरा पास स्टडीज़ एंड फर्दर स्टडीज़ में कम से कम 7 years के गैप है। उसके बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा कनाडा का वीज़ा आएगी, पर ओनली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज़ आज मेरा वीज़ा आ गया एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਏਰੀਆ ਤੋਂ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਏਜੰਟ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਾਂ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਇਆ। ਇਕਬਾਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ B.Tech ਕੀਤੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਟ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਫੀਲਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਕੋਪ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਈ 2019 ਇਨਟੇਕ, Canada Fanshawe College, Construction Project Management course. Hello friends, my name is Navjot Singh and I got my IELTS result and I got overall 7.5 with no less than 6.5, and I got 8.5 in listening and 7 each in reading as well as speaking, and I'm very thankful to Western Overseas as they helped me to gain this much high band which I never even dreamed of. So I'm very thankful to all the staffs, and they always gave me tricks and tips to improve my IELTS band score, and I'm very thankful to the Western Overseas team and especially the teachers. After working for a few years, I want to pursue my further medical career abroad in Australia. So I decided to join for PT in Western Overseas, and there I came across two great mentors, Aman sir and Jyoti ma'am, who really guided me very well and helped me to score overall 83 with 9 bands in 2 modules. And the main thing is they try to focus on the points which you lag behind, and which really helped me to score a great band. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਦਰਪੁਰ 11 ਮਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੰਗਾਨਗਰ 18 ਮਈ, 25 ਨੂੰ ਖੰਨਾ। ਇਹ 3 ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੂਨ 1 ਜੂਨ ਜਰਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਰਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਪੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਰੋਮਾ ਸੈਕਟਰ 22 ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਰ ਉਹ ਸਕਰੋਲ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਚਾਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।